ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں سول اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف شخصیات میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ نشان امتیاز 3، ہلال شجاعت 8 اور ہلال امتیاز 16 شخصیات کو دیا گیا۔ ستارہ پاکستان 1، ستارہ شجاعت 40، ستارہ امتیاز 22، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 2، ستارہ خدمت 1، جبکہ تمغہ امتیاز 34 شخصیات کو دیا گیا۔ جمہوریت، ادب، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، زرعی سائنس، صحافت، سیاحت اور مہمان نوازی سمیت دیگر شعبوں میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعزازات دیے گئے۔ خودکش دہشت گرد کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے لیاقت علی شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے لیاقت علی شہید کے لیے ستارہ شجاعت کی منظوری دی۔ صدر مملکت نے شہید کا اعزاز ان کی والدہ کو دیا۔ شہید کے اہل خانہ کو اعزازات کی تقریب میں شرکت کے لیے پورے پروٹوکول کے ساتھ اٹک سے اسلام آباد لایا گیا۔ قوم اپنے بہادر سپوت لیاقت علی شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ حکومت نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار اور کاروبار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں عالمی معیار کی تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے اقدامات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت یوتھ پروگرام کے جاری اور آئندہ منصوبوں پر جائزہ اجلاس۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے مختلف آسان قرضہ اسکیموں کو ایک چھتری تلے لانے کی ہدایت۔ نوجوانوں کے لیے ملک اور بیرون ملک روزگار کے مواقع یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام نوجوانوں کی تکنیکی اور فنی تربیت پر توجہ مرکوز کرے۔ وزیر اعظم وزیر اعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کی ترقی پر جائزہ اجلاس۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت معیشت کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ صنعتوں کو آسان قرض کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ ڈیجیٹل فائنانسنگ اور برآمدی منڈیوں تک رسائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں خواتین کی شمولیت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات خوش آئند ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک اور رکن قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی کی علیحدہ ملاقات۔ سیاسی امور اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ رواں برس مانسون کے لیے پیشگی تیاریوں کا جائزہ۔ پیشگی اطلاعات کے نظام کو مزید فعال بنا کر خطرات سے دوچار علاقوں کی مسلسل نگرانی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی ملاقات۔ رواں سال حج آپریشن کے انتظامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ سعودی عرب میں پاکستانی حج مشن کو بھرپور خدمات یقینی بنانے کا حکم۔ عازمین حج کو ایئرپورٹ پر تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کویت کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اور روابط کو فروغ دینے میں امن کوششوں کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام آگے بڑھانے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی معیشت پر آبنہ ہرمز کی بندش کے وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ لاہور میں تقسیم اعزازات کی تقریب۔ گورنر پنجاب سردار محمد سلیم حیدر خان نے مختلف شعبوں میں مثالی خدمات کے اعتراف میں 81 شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی پروقار تقریب میں 26 افراد کو ستارہ امتیاز، 10 افراد کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا، 3 کو تمغہ شجاعت اور 42 افراد کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے 13 ممتاز شخصیات کو سول اعزازات دینے کی پروقار تقریب ہوئی۔ گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندخیل نے شہید غلام فرید شہید کی بیوہ کو ستارہ شجاعت دیا۔ ڈاکٹر سید حبیب اللہ شاہ، ڈاکٹر عبد الرؤف رفیقی، محمد عبد الکریم اور عذرا آفتاب کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں سلطان جاوید جمال، نور محمد بلوچ اور شاہ زیب خان شامل۔ شہید مظفر حسین جمالی کی بیوہ کو تمغہ شجاعت عطا کیا گیا۔ 4 شخصیات کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔
गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमात सरंजाम देने वाली 6 शख्सियात को कौमी अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने तालीम के शोबे में नुमाया खिदमात के एतराफ पर डॉक्टर मौलादाद शिफा को सितारा इम्तियाज, मारूफ नात खान ख्वाजा अली काजिम मरहूम की खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और माहिर तालीम गुलाम नबी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज का एक और एजाज, पहली साबिक खातून डायरेक्टर न्यूज शाजिया सिकंदर को सहाफत के शोबे में नुमाया खिदमात पर तमगा इम्तियाज के एजाज से नवाजा गया। शाजिया सिकंदर पीटीवी न्यूज की माया नाज रिपोर्टर और प्रोड्यूसर रहीं। उनकी बनाई गई मुतादिद न्यूज रिपोर्ट्स ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल की। शाजिया सिकंदर की रिपोर्टिंग का बुनियादी नुक्ता मुआशरे में खवातीन के मसाइल को उजागर करना और मुख्तलिफ अहम समाजी उमूर पर दबंग अंदाज में मौक़िफ़ पेश करना था। उर्दू ज़बान और बयां पर उनकी गिरफ्त बेमिसाल है। शाजिया सिकंदर ने पाकिस्तान टेलीविजन में मुतादिद अहम पोस्टों पर भी खिदमात सरअंजाम दी। सी पैक पाकिस्तान के तवानाई शोबे और रवाबित के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली जैसे शोबों में चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। आज हम 720 घर जो है 720 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं। अगले 3 साल में मेरी कोशिश ये होगी कि 5000 से ज़्यादा घर जो हैं वो हम तमाम मेहनत कशों को हम दें। प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं। साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे। मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की लाहौर में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर इंतहाई खुशी है। हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई है। मुस्तहिक मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 720 रिहायशी फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। टेक्सला में 500 घर तकमील के करीब हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद वो अल्लाह के फजल से वो जुर्रत नहीं करेंगे डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हमने इसके बावजूद इस माहौल में जो है उनके साथ गुफ्तगू की है। अफगान तालिबान रजीम जुबानी दावे तो करती है, लेकिन अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न कराने की तहरीरी यकीन दहानी के लिए तैयार नहीं। अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। 3 मुल्कों कतर, तुर्की, सऊदी अरब के जरिए भी तालिबान रजीम से बात की। दहशत गर्दी न रुकी तो हम काबुल के साथ भी वही करेंगे जो भारत के साथ किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क में वाफिर बिजली मौजूद है। लोड शेडिंग में नुमाया कमी हुई। कई फीडर्स पर लोड शेडिंग 0 कर दी है। डिस्कोज लाइन लॉसेस में ज्यादा से ज्यादा कमी लाएं। पावर डिवीजन में 400 अरब रुपए का बोझ कम किया है। नुकसानात में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, ये आलमी मसला है। जम्मू कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। पहलगाम वाक़े ने आलमी सतह पर भारत की साख को बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मार्का हक के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में मार्का हक की मुनासिबत से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में सेमिनार से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा इस्माइल कपूर के दरमियान मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू।
फरीकैन का साजगार कारोबारी माहौल और इक्तसादी ताउन के फरोग पर इत्तफाक। दुनिया के बुलंद तरीन महासे जंग सियाचिन की तारीख के अहम मार्के चुमक ऑपरेशन को 37 साल मुकम्मल। मार्का ऑपरेशन चुमक में पाकिस्तानी फौज के बहादुर बेटे ने तारीख रकम कर दी। 1989 के अवाइल में भारतीय फौज ने सियाचिन की अहम तरीन बुलंद स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जे का नापाक मंसूबा बनाया। सख्त मौसमी हालात में अप्रैल 1989 को लेफ्टिनेंट नवीदुर रहमान को हेलीकॉप्टर स्लिंग के साथ 25,000 फुट की बुलंदी पर उतारा गया। पाक फौज के बहादुर अफसर ने महज एक सिपाही के हमरा दुश्मन की मजमूम साजिश को नाकाम बना दिया। 13 मई 1989 को भारत ने शिकस्त तस्लीम करते हुए जंग बंदी की दरखास्त की, जिसके बाद भारतीय फौज साबिका जगह पर वापस चली गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जायदादों की जब्ती और मिसमारी का सिलसिला तेज। बारामूला के इलाके जांबाजपुरा में शहरी रियाज अहमद की दुकान मिसमार। मनशियात के रोकने के नाम पर कश्मीरियों के इमलाक को निशाना बनाने पर शदीद रद्द-ए-अमल। काबिज इंतजामिया एक जानिब कार्रवाइयां जबकि दूसरी तरफ शराब के लाइसेंस जारी कर रही है। दुकान की मिसमारी एक खानदान के मुआशी मुस्तकबिल पर हमला है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में मुआशी दबाव और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का नोटिस ले, मुबस्सरीन। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मज़ाक़ खेज ड्रामा किया। राजौरी और पूंछ में नाम नहाद तलाशी के नाम पर आम शहरियों की जिंदगी अजीरन। घंटों तवील कार्रवाई के बाद सिर्फ जंग आलूद उस्तरे और पुरानी दूरबीन बरामद होने का दावा। फटे बैग और मामूली अशिया को मशकूक मवाद करार देना तनकीद के जद में आ गया। ड्रामे का मकसद खौफ व हिरास फैलाना और आलमी राय आमा को मुतासिर करना है, मुबस्सरीन। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस का जबर जारी। भारतीय फोर्सेस और एजेंसियों ने गुज़श्ता 31 रोज के दौरान 700 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। जिला पूंछ में कंट्रोल लाइन के करीब एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। जिला कुश्तवाड़ में एक उस्ताद समेत 2 अफराद काले कानून के तहत गिरफ्तार। जम्मू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और प्रीपेड मीटर निजाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ नारे लगाए। पावर प्रोजेक्ट्स का इंतजाम सराम कश्मीरियों के हवाले करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीन के सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप 2 तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन तरक्की से मुतालिक अहम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, एहतराम और बाहमी फवायद के जज्बे के साथ ताउन को फरोग देने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा गो जियाख्वान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान की मुअस्सर सिफारतकारी। पाकिस्तान की असूली सिफारतकारी ने भारत इसराइल गठजोड़ को इज़्तिराब का शिकार कर दिया। पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को कमजोर करने के लिए मुनज़्ज़म मीडिया मुहिम्मात का सहारा लेने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा पहले ही तमाम खबरों को क़यास आराई करार दे चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम ढाका से सिलहट पहुंच गई। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा टेस्ट 16 मई से शुरू होगा। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला क्रिकेट टेस्ट बांग्लादेश ने 104 रन से जीता था। सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Pakistan has batting to come. This is a massive strike. How long is that? Again, it's struck up in the air and it will go the distance. Struck beautifully. पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज। पहले मैच में पाकिस्तान की 153 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से फतह। मुतादिद रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। दूसरा मैच कल कराची में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। He has a very strong action. We have it.
सऊदी प्रो लीग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर का अल हिलाल के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर आखिरी लम्हात में फतह अल नसर के हाथ से निकल गई। 33 मुकाबलों के बाद अल नसर 83 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, अल हिलाल 32 मुकाबलों के बाद 78 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। टाइटल जीतने की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई। और इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में हम वतन के आंद्रे पेलेग्रिनो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच की 31 कामयाबियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। इवेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को इटली के लुसियानो डार्डेरी के हाथों अपसेट शिकस्त। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उस्मा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे इन्हीं खबरों की तफसील भी। यहाँ वक्त पर एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात के एतराफ में 127 शख्सियात को अवार्ड्स दिए। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। कौमी खिदमात के इतराफ में शख्सियात को अवार्ड्स देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। निशान इम्तियाज 3, हिलाल शुजात 8 और हिलाल इम्तियाज 16 शख्सियात को दिया गया। सितारा पाकिस्तान 1, सितारा शुजात 40, सितारा इम्तियाज 22, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी 2, सितारा खिदमत 1, जबकि तमगा इम्तियाज 34 शख्सियात को दिया गया। जमहूरियत की ग्रां कदर खिदमात पर नवाबज़दा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड इनके साहबजादे ने वसूल किया। अदब और खिदमात के शोबे में सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी को निशान इम्तियाज दिया गया, जो इनके बेटे ने वसूल किया। अदब के शोबे में नुमाया खिदमात पर अताउल हक कासमी के लिए निशान इम्तियाज का एजाज उनके फर्जंद ने वसूल किया। वफाकी वजीर तवानाई सरदार उवैस खान लगारी को हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। सरदार अवैस अहमद खान लगारी, आपने माली साल 2024-25 के दौरान तवानाई के शोबे में तारीखी इस्लाहात की, जिसकी वजह से गर्दशी कर्जे में 780 अरब रुपए की तारीखी कमी हुई। आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। उन्हें ये एजाज़ तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात पर दिया गया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली को तवानाई और खिदमात आमा के शोबे में अहम खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ दिया गया। खिदमात आमा, इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी, खेल, तालीम, अदब, सहाफ़त, सियाहत और दीगर शोबों में मजमूई तौर पर 16 शख्सियात को हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। अपने खून से मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले धरती के 6 नडर सपूतों को हिलाल शुजात का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड शोधा के वरसा ने वसूल किया। पुलिस सर्विसेज के वसीम अहमद और जवाद कमर को भी नुमाया खिदमात पर हिलाल शुजात दिया गया। बहरीन के सफारतकार मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल कादिर को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के इतराफ में सितारे पाकिस्तान का एजाज दिया गया। पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली बहादुरी के मुजाहरे और दहशतगर्द अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों और गाजियों की खिदमात के इतराफ में सितारा शुजात के एजाज दिए गए। सितारा शुजात पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज है जो गैर मामूली बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी के इतराफ में दिया जाता है। तकरीब में मजमूई तौर पर 40 शख्सियात को सितारा शुजात के अवार्ड दिए गए।
अटक में अपनी जान कुर्बान करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने वाले लियाकत अली शहीद को भी सितारा शुजात दिया गया। शहीद का ये एजाज उनकी वालिदा ने वसूल किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लियाकत अली शहीद की अजीम कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ करते हुए सितारा शुजात देने की सिफारिश की थी। मार्का हक के दौरान ग्रां कदर खिदमात पर सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा को सितारा इम्तियाज का एजाज दिया गया। तिब, अवामी और समाजी खिदमात समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का एतराफ करते हुए 22 शख्सियात को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तालीम, खिदमात आमा और दीगर शोबों में मिसाली कारकर्दगी के एतराफ में 34 शख्सियात को तमगा इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान टेलीविजन की साबिक डायरेक्टर न्यूज शाजिया सिकंदर को सहाफत के शोबे में अहम खिदमात पर सदर मुमलिकत ने तमगा इम्तियाज से नवाजा। सहाफत के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा शाजिया सिकंदर को तमगा इम्तियाज का एजाज़ अता किया है। शाजिया सिकंदर का ये अवार्ड पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी इंतहाई अहम एजाज और काबिल फख्र है। राशिद वहीद ख्वाजा और जाहिद अहमद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मोहम्मद सईद शेख को खिदमत पाकिस्तान के शोबे में सितारा खिदमत का एजाज दिया गया और गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में शाहिद हुसैन को तमगा शुजात से नवाजा गया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी सतह पर खिदमात का एतराफ, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुल्की और गैर मुल्की नामवर शख्सियात ने सिविल एजाज़ात को अपने लिए बाइस फ़ख्र करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिल वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को तालीम, हुनर और कारोबार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत मनसूबों पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को IT और दीगर शोबों में आलमी मयार की तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए इक़दामात में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तकनीकी और फ़नी तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ करे, जिससे नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े यकीनी हों। उन्होंने कहा कि ज़राअत में प्रोसेसिंग के शोबों को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का दर्जा दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मेडा और वज़ारत सनत की जानिब से तैयार करदा रोड मैप इत्मीनान बख्श है। मुअय्यना मुद्दत में काबिल हुसूल अहदाफ के साथ इतलाक़ का लाहेअमल पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए मुख्तलिफ आसान कर्जा स्कीमों को एक छतरी तले लाने और कम आमदन और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के लिए यूथ प्रोग्राम को वज़ारत सनत के साथ ताउन की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की यूथ रोज़गार पॉलिसी तैयार हो चुकी है। डिजिटल यूथ हब के क़याम से अब तक 8 लाख से ज़ायद नौजवान और 2000 से ज़ायद इदारे रजिस्टर हुए। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स के तहत अब तक 2,87,000 से ज़ायद नौजवानों को 122.5 अरब रुपए का कारोबार और ज़राअत के लिए आसान शराइत पर बतौर कर्ज दिए जा चुके, जिसकी बदौलत 9 लाख से ज़ायद रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत मुआशी तरक्की और बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद रखती है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत के लिए उठाए गए इक़दामात खुशाइंद हैं। ख़वातीन की आसान कर्जों तक रसाई और मसनूआत की बरामदात में मुआवनत के लिए इक़दामात मज़ीद मौसर किए जाएँ। उन्होंने कहा कि ज़राअत में प्रोसेसिंग के शोबों को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का दर्जा दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मेडा और वज़ारत सनत की जानिब से तैयार करदा रोड मैप इत्मीनान बख्श है। मुअय्यना मुद्दत में काबिल हुसूल अहदाफ के साथ इतलाक़ का लाहेअमल पेश किया जाए और कमर्शियल बैंकों की जानिब से छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को आसान कर्ज की फराहमी के लिए इक़दामात किए जाएँ। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्मेडा टीम की जानिब से छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को आसान कर्ज की फराहमी, डिजिटल फाइनेंसिंग, रस्मी मईशत में शमूलियत और बरामदी मंडियों तक रसाई के लिए हंगामी बुनियादों पर काम को खुशाइन करार दिया। इजलास को स्मेडा की जानिब से वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल दरामद पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। इस मौके पर स्मेडा, वज़ारत सनअत व पैदावार और स्टेट बैंक की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्मेडा की जानिब से वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए 8 तज़वीराती शोबों में 48 इक़दामात का नफाज किया जा रहा है, जो आइंदा 2 से 4 सालों में मरहलावार तरक्की के अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता माली साल में निजी शोबे को फ्राहम करदा कर्ज 1.1 ट्रिलियन रुपए था, जबकि रवां बरस 3 तिमाहियों में ही कर्ज 904 अरब रुपए के हदफ को अबूर कर चुका है। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी हारून अख्तर, स्मेडा की टीम और वज़ारत सनत के इक़दामात की तारीफ की
اور انہیں ان اقدامات کے نفاذ و اہداف کے حصول کا جامع روڈ میپ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے ملاقات کی اور رواں برس مانسون کے حوالے سے تیاری پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو پہاڑی علاقوں میں گلاف اور فلیش فلڈز کی پیشگی اطلاع کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت اور اس کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مانسون کے لیے پیشگی اطلاع اور تیاری مزید فعال بنا کر خطرات سے دوچار علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مذہبی امور کے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے ملاقات کی اور جاری حج آپریشن کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عازمین حج اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی حج مشن کی جانب سے ان کی خدمت اور سہولیات میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے اور عازمین حج کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی نے ملاقات میں سیاسی امور اور جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ عبدالقادر گیلانی نے وزیر اعظم کی قیادت میں خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرا جابر الحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اور روابط کو فروغ دینے میں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی امن کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے علاقائی امن و استحکام کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے تعاونی کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کی بندش کے وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال کیا اور جاری صورتحال کے پرامن اور پائیدار حل کی امید ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سی پیک نے پاکستان کے توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں نمایاں تبدیلی پیدا کی ہے اور اب یہ تعاون ڈیجیٹل معیشت اور جدید ٹیکنالوجی کی سمت بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسین رضا۔ اسلام آباد میں آئی بی آئی پاکستان ڈیجیٹل اکنامک ہیڈ کوارٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی آزمودہ ہے۔ پاک چین ڈیجیٹل راہداری سے تعاون اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ Today we are moving from roads to networks, from physical infrastructure to digital architecture. Chinese companies have already contributed significantly to fiber optic connectivity between Pakistan and China, creating a true digital corridor. Cooperation in artificial intelligence and emerging technologies is also expanding rapidly, further strengthening collaboration. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ سی پیک پاکستان کے توانائی اور کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ Under CPEC and the Belt and Road Initiative, we have already attracted tens of billions of dollars in transformative investments in infrastructure and connectivity. Pakistan's digital economy is expanding rapidly, driven by growing internet penetration, increasing mobile connectivity, and rising innovation across the technology sector. With a young talent base and growing digital ecosystem, Pakistan is well positioned to become an important hub. پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت تیزی سے فروغ پا رہی ہے اور ملک ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر آگے لے جانے کے لیے مشترکہ اور مسلسل کوششیں ناگزیر ہیں۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے آئی بی آئی پاکستان ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر کے افتتاح کو پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ شراکت داری میں اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ مزید بتائیں گی کنزا نقوی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل اکانومی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آئی بی آئی ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ SIFC, the apex body, this collaborative effort has actually helped us push through the challenges and hurdles that we had in the past. E-commerce in Pakistan is a fast-growing subject. We're a huge population which is internet-enabled. E-commerce is fast becoming a central means of how we trade. And looking at
the enablement of trade commerce through these digital platforms is going to significantly enhance our capabilities. वजीर आजम के मावन खुसूसी हारून अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजबूत सियासी अज़्म, शफाफियत और मौसर माशी पॉलिसी पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब ले जा सकती है। Pakistan stands today not as a battleground, but as a fortress of stability in a turbulent region. A nation that has paid the price of conflict, yet has always chosen the path of peace. And at a time when the world stood dangerously close to a wider escalation, the statesmanship, restraint, and unity of leadership demonstrated by Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir reflected Pakistan at its very best. इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। IBI पाकिस्तान डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर के क़याम से मुल्क में डिजिटल इकॉनमी, 5G, मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग मिलेगा। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि कल से 18 मई के दौरान इस्लामाबाद में इलाकाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस होगी। एक्स पर अपने पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और कसीरुल जहती शोबों में ब्रदर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात उन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशतगर्दी ना रुकी तो जो हमने भारत के साथ किया वही काबुल के साथ भी करेंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद जावेद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अफगान रजीम के साथ माजी में मुज़ाकरात हुए। अफगान रजीम जुबानी दावे तो करती है लेकिन तहरीरी तौर पर दहशतगर्दी खत्म करने की यकीन दहानी नहीं कराती। इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद वो अल्लाह के फजल से वो जुर्रत नहीं करेंगे डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हमने इसके बावजूद इस माहौल में जो है उनके साथ गुफ्तगू की है। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि मुल्क में 11,500 फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही है, जबकि कई दीगर फीडर्स पर भी लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बिजली की वाफिर मिकदार मौजूद है और हुकूमत ने लोड शेडिंग में नुमाया कमी लाने में कामयाबी हासिल की है। 3,000 कुछ 100 फीडर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 घंटे से लेके 16 घंटे तक लोड शेडिंग है। अगर ये लोड शेडिंग ना की जाए तो हमारा खसारा पावर थेफ्ट वगैरह की वजह से बहुत बढ़ जाएगा। इसी महीने से एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो इन 3,000 फीडर्स को अगले 1 से 1.5 साल में हम लोग सब फीडर्स की लोड शेडिंग को फीडर लेवल से नीचे लाके और ट्रांसफार्मर लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। कौमी असम्बली में खालिस मुनाफे के हसूल, मालियाती इंतजामात बिल, बरामद और दरामद बैंक पाकिस्तान तरमीमी बिल, मालियाती जिम्मेदारी व तजदीद कर्जा तरमीमी बिल, खसूसी इक्तसादी जोन तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। ये बिल वजीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी ने ईवान में पेश किए। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफ कौंसिल बिल भी मंजूर कर लिया गया। बिल विफाकी वजीर सेहत व खिदमत मुस्तफ़ा कमाल ने पेश किया। कौमी असम्बली में इलाका इस्लामाबाद मलकियत और इंतजाम बिल भी मंजूर कर लिया। बिल विफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने पेश किया। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की सलामती का दाई रहा है। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत आज आलमी तन्हाई का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में मार्के हक के हवाले से एक सेमिनार से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा कि पहलगाम के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर भारत ने जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को बदतरीन शिकस्त की हजीमत का सामना करना पड़ा। We were well within our right under the UN Charter to respond in a firm and decisive manner as we did.
And in the narrative domain, we were addressing the international media because we had a lot to tell to the world. When I say that Pakistan has been a frontline state against terrorism, or a shield or a wall between the terrorists and the rest of the world, when one Pakistani lays down his or her life, it is for the motherland, yes. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मार्के हक में तारीखी कामयाबी और ईरान अमरीका जंग बंदी में मुअस्सर हिकमत अमली और बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत आज आलमी बिरादरी पाकिस्तान के अमन पसंद किरदार की मोतरिफ है, जबकि लॉबिंग पर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने वाला भारत एक साल के कलील अरसे में शाइनिंग इंडिया से अब आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। Pakistan's relevance, significance at the international level, Pakistan's name is taken with a lot of respect. People see it as a serious country which is resolving international disputes. Our leadership is widely respected. And on the other hand, your eastern neighbor, which spent hundreds of billions of dollars through lobbying firms, through PR firms, to come up with its shining slogan. But from shining to isolation. वज़ीर इत्तलात ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की हिकमत अमली को सराहते हुए कहा कि पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक आलमी मसला है, जिसके हल के लिए सलामती कौंसिल में करारदादें मौजूद हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान की उसूली सिफारतकारी ने भारत इसराइल गठजोड़ को इज़्तिराब का शिकार कर दिया है। मई 2025 की पाक भारत कशीदगी में कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने खित्ते में अपने बढ़ते असर व रसूख को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत इलाकाई व आलमी फोरम्स ने पाकिस्तान के फ़ाल सालसी के किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान के फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ और बढ़ते हुए सफारती किरदार पर इसराइल और भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहूदो हनूद प्रोपेगेंडा मशीनरी पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को कमज़ोर करने के लिए मुनज़्ज़म मीडिया मुहिम्मात का सहारा लेने लगे हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ बूट फॉर्म्स के जरिए अमरीकी अकाउंट से ट्वीट्स कराता है। नेतन्याहू ने CBS के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अमरीका इसराइल ताल्लुकात में कशीदगी का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आयद किया। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS ने मन घड़त प्रोपेगेंडा करते हुए दावा किया कि अमरीका ईरान कशीदगी और पाकिस्तानी सालसी के दौरान ईरानी तैयारों को पाकिस्तानी एयरबेस पर जगह दी गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तमाम खबरों को कयासराई करार देते हुए वाज़ेह किया कि ईरानी तैयारों की आमदोरफ्त सफारती अमले तक महदूद थी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए काबुल में दहशतगर्द ठिकानों पर हमलों को इंसानी अलमिये के तौर पर पेश किया, जबकि भारतीय मीडिया ने भी BBC के काबुल हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाने के मज़ाक़-खेज़ बयानिए को बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर व रसूख से भारत को पस मंज़र में चले जाने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने खलीजी रियासतों को अमरीका ईरान तनाज़े में मजीद तबाही से बचा लिया है, जबकि पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी सिफारती असर और रसूख ने भारत और इसराइल को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार 720 मेहनतकश खानदान बिना किसी मुआवजे के अपने घरों के मालिक बन गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तकरीब की तफसील वर्दा सलीम की रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 720 मेहनतकश खानदानों को दर बदर की ठोकरों और किराए की मुश्किल से निजात दिला दी। लाहौर में एक तकरीब के दौरान मेहनतकशों को फ्लैट के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां फराहम करने के मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर वो आज इंतहाई खुश हैं। उन्होंने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम 720 घर जो है 720 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं, लेकिन टैक्सिला में भी माशाल्लाह 500 के करीब घर जो हैं वो तैयार हैं। उसके अलावा अगले 3 साल में मेरी कोशिश ये होगी कि 5000 से ज़्यादा घर जो हैं वो हम तमाम मेहनतकशों को हम दें। तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं और इसके अलावा हम प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं मेहनतकशों को, और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे ताकि वो अपना जो प्लॉट्स उनको मिले हैं वो उसके ऊपर अपना घर भी तामीर कर सके और 9-10 साल में 14,000 करके अपनी किस्त जो है वो अदा कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह
ایک 1.25 سال کی 1.5 سال کی قلیل ترین مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 لاکھ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب منصوبہ دنیا بھر میں بطور ماڈل پیش کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب کا دائرہ کار پورے صوبے تک پھیلایا گیا۔ ستھرا پنجاب دنیا کا ایک کامیاب ترین ماڈل ہے جو پورے پنجاب کے طول و عرض کی صفائی کر رہا ہے، آپ کے شہروں کو، آپ کے گاؤں کو، دیہاتوں کو، گلیوں کو، محلوں کو، سڑکوں کو، آپ کے صوبے کو صاف کر رہا ہے۔ اس کو برازیل نے ایکنالج کیا اور ہم وہاں پر ستھرا پنجاب کو میں نے پوری دنیا کے سامنے ایک سکسیس ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر محنت کشوں کو فلیٹس کے الاٹمنٹ لیٹرز اور چابیاں بھی تقسیم کی۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اضلاع کو خود مختار بنانے کے ساتھ ریونیو اور ترقی کے حوالے سے تاریخی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فیصل آباد ڈویژن میں نجی سوسائٹی میں 3 سالہ بچی کھلے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کوئی شہری مین ہول میں گرا تو سوسائٹی مالکان کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ تمام کنسٹرکشن سائٹس کو باقاعدہ SOPs کے مطابق کارڈن آف کیا جائے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے PPP رہنما سید خورشید شاہ، نیر بخاری، نوید قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند اور حمزہ قمر کائرہ نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سفارش پر نڈر سپوت لیاقت علی شہید کو بعد شہادت صدر آصف علی زرداری نے ستارہ شجاعت کا ایوارڈ دیا۔ مادر وطن کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے نڈر سپوت کی والدہ نے ایوارڈ وصول کیا۔ اٹک میں خوشحال گڑھ پوسٹ کے قریب خود کش حملہ ناکام بنانے والے لیاقت علی شہید کی قربانی کے قومی سطح پر اعتراف پر وزیر اعظم نے کہا کہ شہید نے ہمت اور بہادری کی جو مثال قائم کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز اور عوام نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ارض پاک کے تحفظ اور دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے ہر شہری سیسا پلائی دیوار ہے۔ نہتے لوگوں کو نشانہ بنانے والے بزدل دہشت گرد ہمارے بلند حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم شہید لیاقت علی اور ان کے اہل خانہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اٹک کے بہادر سپوت لیاقت علی شہید نے موت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی ہمت نہ ہاری۔ دہشت گردی کے خلاف ان کی جرت، بہادری اور عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تفصیل عمران منصف خان کی اس رپورٹ میں۔ خطرہ جب سر پر کھڑا ہو تو اکثر لوگ اپنی جان بچانے کا سوچتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ لیاقت علی کا شمار بھی ایسے بہادر اور باہمت افراد میں ہوتا ہے جو قوم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیاقت علی کی جو شہادت ہے وہ ایک میسج ہے پاکستان کے اندر جو فسادی ہیں اور باہر والے بھی، کہ جب تک لیاقت شہید جیسے لوگ ہیں تو آپ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیاقت علی صرف اٹک کے نہیں پورے پاکستان کے ہیرو ہیں، انہوں نے جو ہے بہادری کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ 11 مئی کا دن جب ضلع اٹک کی تحصیل جنڈ کے علاقے خوشحال گڑھ میں دہشت گرد اپنے مکروہ عزائم کی طرف خاموشی سے بڑھ رہا تھا، ایسے میں لیاقت علی نے اس کی مشکوک حرکات و سکنات کو بھانپ لیا اور بے خوف ہو کر اسے للکارا۔ شناختی کارڈ سے متعلق ایک عام شہری کی جانب سے پوچھنے اور اچانک مزاحمت پر دہشت گرد کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ گھبرا گیا۔ دہشت گرد نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ یہ روڈ کے ساتھ آ رہا تھا، چیک پوسٹ میں جا رہا تھا، میرے بھائی نے روکا تھا، اس نے بولا ادھر کھڑو میری بات سنو، اس نے بولا کاٹ دو، ایک دو سیٹنگ اس نے گل کی ہے تو اس نے بم چھڑا دیا۔ یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھا جو آج ہم سے چلا گیا اور ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔ لیاقت علی نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بناتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اور علاقے کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ میرے والد نے دشمن کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور ہماری آنے والی نسل کو یہی پیغام دی ہے کہ کبھی موت کو دیکھ کر اپنے فیصلہ نہیں بدلنا ہے اور اپنے ملک اور اس اسلام کے لیے ہمیشہ آخری دم تک لڑتے رہنا۔ لیاقت علی محکمہ ریلوے کے سابق ملازم تھے اور مال مویشی پال کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کے پسماندگان میں 3 بھائی، ضعیف والدہ، 3 بچے اور ایک بیوہ شامل ہیں۔ اپنے نام کی طرح جرت و بہادری کے پیکر لیاقت علی نے قربانی اور انسان دوستی کی ایسی مثال چھوڑی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ قوم اپنے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
قومی سطح پر خدمات کا اعتراف۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ملکی اور غیر ملکی نامور شخصیات نے سول اعزازات کو اپنے لیے باعث فخر قرار دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے سول اعزازات دراصل قومی ہیروز کی خدمات کے اعتراف کی روشن روایت ہیں۔ قوم کو ان بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر ہے جنہوں نے فن، کھیل، صحافت، تعلیم، ادب، طب، سماجی خدمات اور فلاحی کاموں سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے سول ایوارڈز حاصل کرنے کو قابل فخر لمحہ قرار دیا۔ یہ ایک مومنٹ آف پرائیڈ ہے، فخر اور انبساط کا لمحہ ہے، اور دل سے ایک دم شکر کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے شکر الحمدللہ نکلا منہ سے، اور پھر نکلا کہ شکریہ پاکستان۔ بہت بڑا آنر ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں اس وقت انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں، بہت شکر گزار محسوس کر رہا ہوں۔ 45 سال کی خدمات میں مختلف اداروں کو، مختلف والنٹیئرس کو، مختلف سپورٹرز کے ساتھ مل کے جتنے ملینز آف ڈالر کے ریلیف ایفرٹس کیے ہیں، اور جتنے ٹریڈ اور دوسرے حوالوں سے ہم نے کام کیا ہے، آج اس کا ہمیں ایک ریکگنیشن ملا ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی اسپورٹ شوٹنگ کی کمیونٹی ہے، ان سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ دس از دا فرسٹ تمغہ امتیاز ان پاکستان ہسٹری ان شوٹنگ اسپورٹس فرام 1958 ٹو 2026۔ بڑی اچھی بات لگتی ہے اور بڑا انکریجنگ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جرنلسٹ کو اس کی سروسز پہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہم پاکستان میں پہلی AI یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس کا نام ہے یونیورسٹی آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ایمرجنگ سائنسز۔ آئی ایم گلیڈ دیٹ وی گاٹ اے چانس ٹو ورک ود فار پاکستان۔ حکومت کا شکریہ جو ہماری کوششوں کو سراہ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو حکومت نے ہمیں یہ تمغہ دیا ہے، اس نے ہمارا اور حوصلہ بلند کیا ہے، اور انشاءاللہ مزید اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ سول ایوارڈز حاصل کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ اعزازات ان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ مزید محنت اور قومی خدمت کے جذبے کو تقویت دیں گے۔ کسی بھی لمحے کے اوپر اگر کوئی اس کی پذیرائی کرے اور اس کو پہچانے تو نیچرلی وہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے ایک بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، اور ایک فلفلمنٹ کا، کنٹینٹمنٹ کا لمحہ ہوتا ہے۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چیز مل سکتی ہے۔ میں نے تو یقیناً پچھلے 20 سالوں سے میں نے پاکستان کے لیے خدمت کی ہے، ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی ہے۔ سول اعزازات حاصل کرنے والوں نے کہا کہ یہ کامیابی صرف انفرادی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے جنہوں نے خدمت کے اس سفر میں ان کا ساتھ دیا۔ سول اعزازات ان شخصیات کے لیے قومی سطح پر خراج تحسین ہے جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور خدمات سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے آج ایک اہم دن ہے۔ آج ہماری سینئر کولیگ، پہلی خاتون ڈائریکٹر نیوز اور ڈائریکٹر IR کو ان کے الیکٹرانک میڈیا کے لیے طویل خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ میری کو اینکر عظما آج ان سے ملی، ان کے تاثرات جانے، انہیں مبارکباد دی۔ آئیے آپ کو بھی ملواتے ہیں۔ سابق ڈائریکٹر نیوز محترمہ شازیہ سکندر صاحبہ، جنہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں آج حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ PTV میں ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج آپ کس طرح سے محسوس کر رہی ہیں؟ ہائیسٹ لیول پر آپ کی جو صحافتی خدمات ہیں ان کو ایکنالجمنٹ ملی ہے، تو کیا آج آپ کے تاثرات ہیں؟ دیکھیے، خوشی کا لمحہ ہے کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لوگ جی، اور اگر اس کی پذیرائی ہو جائے چاہے کسی بھی موقع پہ ہو تو اچھا ہی لگتا ہے اس کو جی، اور یہ اعزاز صدیوں تک جاتا ہے جی، آپ کی نسلوں تک جاتا ہے۔ مطلب جو اعزاز میں نے کمایا ہے PTV کے بدولت، اپنے کام کی بدولت، اور ایز اے ڈائریکٹر نیوز جس طرح سے آپ نے بہت بڑی بڑی اسائنمنٹس پر کام کیا، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، جو کام شروع کیا ایز اے رپورٹر، پہلے 3 شعبے ہوتے تھے، پروڈکشن، ڈیسک رپورٹر۔ اتفاق ہے کہ لب لہجہ، زبان کا ایج ہونا، پھر پہلے سے لکھتی پڑھتی آئی تھی، تو رپورٹنگ میں نے، بلکہ ہائر اپس نے رپورٹنگ کے شعبے میں رکھ دیا۔ اس وقت سے جو کام کرنا شروع کیا تو پھر مڑ کے نہیں دیکھا۔ ٹائم کیا ٹائم ہے، کبھی بھی خاتون بن کے، لڑکی بن کے کام نہیں کیا کہ میں یہ اس اسائنمنٹ پہ نہیں جاؤں گی، میں اس اسائنمنٹ پہ نہیں جاؤں گی۔ جتنی رپورٹنگ، آؤٹ ڈور رپورٹنگ یا انویسٹیگیٹو رپورٹس میں نے بنائی ہے، ابھی تک کسی نے نہیں۔ جس شعبے میں جس طرح کا بھی کام کر رہی ہیں، پوری ڈیڈیکیشن سے کریں، کام کو پریفرنس دیں، اور جو بھی کچھ زمانہ سکھا رہا ہے اور جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل آ رہی ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے، اپنے آپ کو اس سے اکوپ کریں تاکہ آپ کو بینگ اے فیمیل
किसी का मोहताज ना होना पड़े और आप जमाने के साथ चल सके। उस दौर में, उस जर्नलिज्म में, आज के जर्नलिज्म में क्या फर्क देखती हैं आप? देखिए, उस दौर में काम करना मुश्किल तो था, मगर सोशल इश्यूज पर काम करने का मौका उस वक्त भी था और इंफॉर्मेशन तक रसाई बहुत मुश्किल थी। अब तो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, इंटरनेट है, जो भी सहूलतें हैं आप फौरन आपको मिल जाती हैं। उस वक्त ये मुश्किल था, मगर रहनुमाई भी थी। और आज के दौर में, उस दौर में फर्क ये है कि आज आप बात और खुलकर कह देती थी। नाज़रीन, आपने शाज़िया सिकंदर साहिबा के जो तासुरात हैं मुलाज़ा किए, हमारी को एंकर ने उनसे मिले, और शाज़िया सिकंदर साहिबा जो तमाम ख़वातीन के लिए एक जो हैं वो मिसाल हैं जो माशरे में अपना नाम बनाना चाहती हैं। ख़बरनामे में आगे बढ़ते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर भारतीय फोर्सेस और बदनाम ज़माना एजेंसियों की तरफ से बड़े पैमाने पर छापों और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस और एजेंसियों ने गुज़श्ता 31 रोज़ के दौरान ख़वातीन समेत 700 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में जारी इंसदाद मनशियात की नाम नेहाद मुहिम की आड़ में होने वाली इन गैर कानूनी गिरफ्तारियों का मकसद आज़ादी पसंद कश्मीरियों को दहशत ज़दा करना और उन्हें घरों, ज़मीनों और दीगर अमलाक से महरूम करके अपने ही वतन में अजनबी और मफलूकुल हाल बनाना है। इंतजामिया इस नाम नेहाद मुहिम की आड़ में अब तक कश्मीरियों की 20 अमलाक जब्त और मुनहदम कर चुकी है। भारतीय फौजियों ने जिला पूंछ के इलाके कृष्णा घाटी में कंट्रोल लाइन के करीब एक नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने जिला किश्तवाड़ में तलाशी की ये एक कार्रवाई के दौरान उस्ताद मशकूर अहमद समेत 2 अफराद को काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का जवाब फराहम करने के लिए उन पर आज़ादी पसंद सरगर्मी में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के कारकुनों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और प्रीपेड मीटर निज़ाम के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में कायम बिजली के मनसूबों से भारतीय रियासतों को बिजली फराहम करती है, जबकि कश्मीरियों को बिजली से महरूम रखा जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स का इंतजाम और इंसराम कश्मीरियों के हवाले करने का मुतालबा किया। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से अहम खबर आपको देंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने 3 रोज़ा दौरे पर चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर ट्रंप अपने दौरे के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और दोनों रहनुमाओं में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और आलमी मईशत पर बातचीत होगी। सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। ईरान ने वाज़ेह किया है कि उनकी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर अपने तवील बयान में कहा कि दुनिया बर्बरियत के खिलाफ ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका इजराइल ने ईरान पर जो जंग मुसल्लत की है, ये महज ज़मीन या वसाइल की खातिर नहीं, बल्कि ये जंग आने वाले दौर में अच्छाई और बुराई के मानी मुतय्यन करेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि ईरान पर साल में दूसरी बार हमला करने वाले हर जंगी कानून की खिलाफ वर्जी पर खुशियां मनाते हैं। पुरअमन ईरानी कौम पर हमला करने वाले अपने खेल के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि जंग पेशावर झूठों और अपने वतन का दिफा करने वाले फाखिर लोगों के दरमियान है। ऐसे लम्हे में खामोशी भी बुराई का साथ देने के मुतरादिफ होती है। PTV न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए।